Hello everybody, welcome to Law Seco's Daily News Analysis. Today is 19 June 2020 and the topics that we'll be covering for today are the first article, ये Hindu newspaper में है, it's called At the End of, at the High Table. So this article is about how India got voted as a non-permanent member in the United Nations Security Council. And we will discuss about what changes and what policy suggestions can India bring to the table by being such a member. The second article is called Easier Said. This article is with respect to India-China relationship और उन दोनों के बीच में trade पे क्या effect पड़ सकता है because of the standoff that has happened recently and the face-off also. And the third article is also somewhat related to the second article. So the third article is called Can India Decouple Itself from Chinese Manufacturing? ये भी इंडिया चाइना के ट्रेड के रिलेशन के रेस्पेक्ट में ही है एंड द सेकंड एंड थर्ड आर्टिकल आर लिटिल बिट रिलेटेड so we will discuss them almost together. So coming to our first article for today, which is called At the High Table. तो हम इस पे आए कैसे? Recently, actually yesterday only, India got voted as a non-permanent member to the United Nations Security Council. Now, just a gist of how this whole organizational system works. So, United Nations is an organization, international organization, which is intergovernmental. There are 193 members in this organization. South Sudan जो है वो उनका 193rd member था, member country है. So ये जो intergovernmental organization है, ये it is aimed at maintaining peace. 1945 में बनी थी after World War II. And this is just the basic gist of United Nations, and you all can go and you should research on it because ये बहुत important अच्छा topic है exams के लिए, and even if not for the exams, everybody should have a basic knowledge about how United Nations. So this is United Nations. Then it has 6 principal organs. So एक principal organ तो actually suspend हो गया 1994 में, but originally it had 6 principal organs. So first one is the United Nations General Assembly, then United Nations Security Council, Economic and Social Council, Trusteeship Council which got suspended, उसकी functioning suspend हो गई 1994 में, then International Court of Justice and the Secretariat. Currently what we're talking about is United Nations Security Council. So the Security Council है United Nations का, it is one of the most powerful organ in the United Nations. And United Nations itself is an intergovernmental world का बहुत powerful organization है, उसमें Security Council इसका बहुत powerful organ है. तो आप समझ सकते हैं कि इसकी importance कितनी ज़्यादा है. Now Security Council का main function ये होता है कि जो भी states के against force use करनी होती है, वो Security Council action करनी है. So say for example there's some war going on in some country. एंड इंटरनेशनली ये कंसेंसस बन रहा है कि उस कंट्री को रोकना चाहिए, उस कंट्री की गवर्नमेंट को रोकना चाहिए. तो सिक्योरिटी काउंसिल के हिस्से होते हुए वो वीटो होगा वो डिसीजन कि वेदर अ वॉर, वेदर सम सैंक्शंस बी पास्ड अगेंस्ट दैट गवर्नमेंट एटसेट्रा, लाइक व्हाट एक्शंस कैन बी टेकन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट. इसीलिए ये पावरफुल ऑर्गन है. अब सिक्योरिटी काउंसिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? So in total, Security Council has 15 member states. Out of these 15 member states, 5 जो हैं ये होते हैं permanent members. तो ये 5 permanent members जो Security Council के हैं ये है US, UK, China, Russia and France. ये 5 जो countries हैं ये permanent members हैं, यानी कि शुरू से लेकर जब तक भी Security Council रहेगा तब तक ये इसके members रहेंगे. बचे जो 10 seats हैं ये non-permanent members हैं. अब ये 10 सीट हर 2 साल के पीरियड में इनका इलेक्शन होता है. रादर 5 सीट्स का हर साल इलेक्शन होता है. एंड ये 5 सीट जो होती हैं ये जनरल असेंबली के जो 193 कंट्रीज हैं ये वोट करते हैं कि कौन सी कंट्रीज को नॉन परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए. सो दिस इज हाउ इट फंक्शंस. एंड ऊपर से ये जो 10 सीट्स हैं जिनके इलेक्शन नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए ये रीजन्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करी गई है. तो अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज को 5 सीट्स अलॉटेड है इन टोटल. ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री को 1 सीट अलॉटेड है. लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन कंट्रीज को 2 सीट्स अलॉटेड है. एंड वेस्टर्न यूरोप और बचे हुए जितना रीजन है
उनको 2 सीट्स अलॉटेड है। तो इस तरह से रीजन के हिसाब से ये नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए सीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है और उस पर्टिकुलर रीजन से वोट होता है जिसके थ्रू एक कंट्री नॉन परमानेंट मेंबर बनती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो अब बात करते हैं कि करंटली इस साल का इलेक्शन क्या था। तो इस साल का इलेक्शन अगेन, क्योंकि हर साल 5 नॉन मेंबर स्टेट इलेक्ट होते हैं यूएनएससी में, इस साल 5 नॉन मेंबर स्टेट का इलेक्शन हुआ। इंडिया वाज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट। नाउ इंडिया एशिया पैसिफिक रीजन से फाइट कर रहा था फॉर वन ऑफ द सीट, एंड इट इज सेड दैट इट्स अ क्लीन स्लेट विक्ट्री बिकॉज इंडिया का कोई कंटेंडर नहीं था। So there was no other country from Asia Pacific region जो इंडिया के अगेंस्ट खड़ी हुई थी। क्योंकि कोई ऑपोजिशन नहीं था तो काफी एक्सपेक्टेड था टू द गवर्नमेंट एंड एवरीबडी कि इंडिया को नॉन परमानेंट सीट मिल ही जाएगी। दैट इज व्हाई इट्स अ क्लीन स्लेट विक्ट्री एंड एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग इट। अब बात करते हैं कि ये विक्ट्री सिग्निफिकेंट क्यों है। तो डेफिनेटली बिकॉज यूएनएससी इट्स अ पावरफुल बॉडी और इसमें एक सीट पाना काफी सिग्निफिकेंट बात है एंड इट इज अ सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर द कंट्री। बट इंडिया आल्सो हैड सर्टेन विजन्स इन माइंड। तो काफी सारे गोल्स थे। इवन सीट के बारे में कैंपेन करते टाइम पे भी इंडिया ने काफी विजन्स और गोल्स फॉरवर्ड रखे हुए थे। Let's just go through them one by one to discuss कि general idea क्या है behind India's seat here and हम क्या expect कर सकते हैं future में। तो campaign में एक बहुत जो important strong point था which India was again and again persistently discussing was its commitment to multilateralism and reforms। तो हमारे जो external affair minister है एस जयशंकर, उन्होंने he has come up with something called norms। अब ये norms stands for new orientation for reformed multilateralism multilateral system। तो बेसिकली मल्टीलैटरलिज्म के बारे में बात करते हैं। मल्टीलैटरलिज्म मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से किस तरह से डील करना है। तो इंडिया का अप्रोच अब कुछ ऐसा बन रहा है दैट दे वांट टू बिल्ड रिलेशनशिप एंड जो इश्यूज इंडिया उठाना चाहता है ऑन द यूएनएससी टेबल, दे वांट कि ये जो इश्यूज हैं ये इन खाली 5 मेंबर स्टेट्स के कंसर्न और इनके फेवर में ना हो, रादर वी नीड टू कीप इन माइंड द एंटायर वर्ल्ड एज ऑफ टुडे। तो होता क्या है यूजुअली इन पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस में जो ज्यादा पावरफुल कंट्रीज होती हैं, जैसे यहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यूजुअली इनके अगेंस्ट कभी भी कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है प्राइमरीली बिकॉज दे आर द परमानेंट मेंबर्स। एंड से फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट यूएस, देयर रेयरली कोई ऐसी सिचुएशन आई होगी कभी जब यूनाइटेड नेशंस ने यूएस के अगेंस्ट कोई सैंक्शन इशू किया हो, बिकॉज यूएस इज अ वेरी पावरफुल कंट्री एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इनके अगेंस्ट कोई पनिशमेंट का सिस्टम नहीं चलता है, रादर ज्यादातर ट्रेड सैंक्शंस ही इशू होते हैं एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। एंड बिकॉज यूएस इज सच अ पावरफुल कंट्री, इसके अगेंस्ट ज्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो नहीं पाता है ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। तो इंडिया का यही कहना है कि वी नीड टू लुक एट द रियलिटी ऑफ 21st सेंचुरी एंड वी नीड टू मेक डिसीजंस so that खाली जो पावरफुल मेंबर कंट्रीज हैं इन ऑर्गेनाइजेशन के खाली उनके फेवर में डिसीजन ना लिए जाए, रादर एक होलसम डिसीजन लिया जाए which is advantageous to everybody। नाउ वी ऑल नो कोविड-19 ने पूरा ग्लोबल जो ऑर्डर है उसको डिस्टर्ब कर ही दिया है। एवरीबडी इज इन chaos, every country is in chaos एंड उस रियलिटी को भी माइंड में रखते हुए वी नीड टू डू and deal with multilateralism in an effective manner to keep the global reality in our mind। Then one more thing that that was there in India's campaign was it demanded transparency for mandates in US peacekeeping mission, UN peacekeeping mission। Now again जो UN peacekeeping mission होता है, जैसे जो war torn countries होती हैं, for example अफ्रीकन कंट्रीज, काफी समय से काफी सारी अफ्रीकन कंट्रीज में वॉर चल रहा है, तो वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस अपना पीस कीपिंग मिशन भेजता है। नाउ ऑल द मेंबर कंट्रीज, उनके लोग जो होते हैं वो इन पीस कीपिंग मिशन के पार्ट होते हैं। तो इंडिया डिमांडेड कि ये यूएन पीस कीपिंग मिशन जो हैं ये जहाँ जा रहे हैं ये कब और कितने समय तक उस जगह पे रुकेंगे, इसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एंड ऑल द कंट्रीज शुड बी अवेयर अबाउट देम एंड राइटली सो दे शुड बी।
थर्ड पॉइंट जो इंडिया की कैंपेन में था वो ये था दैट इट वांट्स टू पुश फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। नाउ ये जो हमारा इंडिया नॉर्दर्न इंडिया का रीजन है, स्पेशली कश्मीर साइड, स्पेशली आफ्टर 2019 में जो कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस चेंज हुआ है, उसके बाद थ्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ टेररिज्म हम काफी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड पहले से भी इंडिया वाज वन ऑफ द कंट्रीज जिसमें टेररिज्म का थ्रेट काफी पर्टिनेंट था। So which is why India is pushing for a comprehensive convention on international terrorism, and it's hoping कि सारी countries साथ में आके इसमें participate करेंगे. The last point for India's campaign was a joint effort for UN reform and expansion of Security Council. अगेन ये उस सेम चीज पे ही बात करता है कि जो पूरा फोकस है सिक्योरिटी काउंसिल का, रादर पूरे यूनाइटेड नेशंस का, इट शुड नॉट बी फोकस्ड ऑन पावरफुल कंट्रीज, पावरफुल नेशंस, रादर देयर शुड बी अ होलिस्टिक एक्सपेंशन ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस टू वर्क इन फेवर ऑफ ऑल दी कंट्रीज। एंड फाइनली ये आर्टिकल ये भी बोलता है कि अब इंडिया, नाउ दैट इट इज वन ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर स्टेट्स here in the United Nations Security Council, और इतना इम्पोर्टेंट रोल इंडिया के हाथ में आया है, तो फिर साइड्स लेने की बजाय किसी एक कंट्रीज की, और एग्जांपल हम जैसे कि देख ही रहे हैं, यूएस और चाइना में काफी राइवलरी चल रही है, बिटरनेस है दोनों के बीच में। सो इंडिया का पोजीशन ऐसा होना चाहिए दैट इट शुड नॉट टेक साइड, कि एक कंट्री की साइड ले ले और दूसरी की ना ले, रादर इंडिया को एक वैल्यू बेस्ड अप्रोच अपनाना चाहिए जो कि सबके इंटरेस्ट में हो और सबके फेवर में हो। Now the second article for today, it's called easier said. Again ये अब इंडिया और चाइना के पर्सपेक्टिव में है। इंडिया और चाइना की अगर हम बात करें, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस एक इंटरनेशनल कंसेंसस तो बना ही हुआ है कि चाइना के अगेंस्ट ट्रेड सैंक्शन इशू किए जाने चाहिए। अभी कहाँ तक वैलिड है ये तो एक डिबेटेबल इशू है कि चाइना के अगेंस्ट सैंक्शन इशू होने चाहिए बिकॉज इट वाज एन इंटेंशनल वायरस और नॉट. These are all contentional issues and we cannot comment on that, but the fact is there is an international consensus कि there should be sanctions against China. On the top of that, अभी इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर इश्यूज भी चल रहे हैं। तो वी ऑल नो कि रिसेंटली गलवान वैली में कम से कम इंडिया के 20 सोल्जर्स की डेथ हो गई है एक फेस ऑफ में इंडियन और चाइनीज फोर्सेस के बीच में, जिसकी वजह से दोनों देशों के रिलेशंस में प्रॉब्लम आ गई है। तो इंडिया और चाइना के रिलेशन प्रॉब्लमेटिक चल रहे हैं ना। इसको ध्यान में रखते हुए पब्लिक डिमांड काफी हो रही है कि चाइना से जो ट्रेड करके जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसको हम बैन करें, यानी कि हम उसको यूज ना करें रिटेलिएट करने के लिए चाइना के अगेंस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, उन्होंने भी बीएसएनएल और जो दूसरी कंपनीज है उनको बोला है कि चाइना के जो इक्विपमेंट्स बन के आते हैं उनको यूज ना किया जाए। एक रेलवे में भी चाइना के जो कंपनीज है वो कॉन्ट्रैक्ट लूज करने के आधार पे हैं ऑलमोस्ट। तो ये जो आर्टिकल है ये बात करता है कि rather than taking split second decision, एक immediately just because something has happened उस गुस्से में आके हम जो डिसीजन ले रहे हैं उसकी जगह कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना जरूरी है कि अगर हम चाइना से ट्रेड बंद करेंगे तो हम पे एक्चुअली क्या इफेक्ट होगा। And this is generally a very important topic because we all know that India as a country is heavily reliant on Chinese products, और हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं हाउ मच चाइनीज प्रोडक्ट्स वी यूज एवरी डे। तो इसीलिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना जरूरी है कि अगर हम चाइनीज इंपोर्ट्स बंद करेंगे, चाइनीज प्रोडक्ट्स यूज करना बंद करेंगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा इंडिया पे एज अ होल एज नेशन। So firstly, that the author says that India का जो import इंडिया में आता है चाइना से, it's only a minuscule part of China's export. मतलब चाइना तो exports to different countries, इंडिया उसमें बहुत ही छोटा पार्ट प्ले करता है। तो अगर इंडिया बंद भी कर देगा import करना चाइना से, तो चाइना के ऊपर इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा because it's only a minor portion. रादर इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये देखना जरूरी है बिकॉज इंडिया के ऊपर हो सकता है बड़ा इफेक्ट पड़े देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑन चाइना।
So he says, we all know that we are heavily reliant on China for all types of products. He says कि consumers के लिए price बढ़ जाएगा अगर if we cut off imports from China. For example, consumer goods होते हैं, we see them everywhere. Daily के consumer goods, खाने की चीजें, toys and electric products. A lot of these things are most of these things rather are coming from China, and if we cut them off तो फिर Indian produced या फिर किसी और देश के produced चीजें use करने पड़ेंगी which are comparatively expensive than the Chinese goods. Then even essential goods we are heavily reliant on China for. So author gives examples of these medical masks, for example, जो कोविड में बहुत ही काम आ रहे हैं. Most of these medical masks are imported from China. तो वो हम कट ऑफ करेंगे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी. Then the author says that अगर हमने ये कट ऑफ कर दिया, it will affect domestic manufacturing competitiveness. तो जो चाइना है, it doesn't only produce basic consumer goods and essential goods, rather जो capital goods आते हैं, for example different types of machinery or intermediate goods that are necessary for manufacturing process, India imports them also from China and majorly so. तो अगर वो कट ऑफ कर दिया तो इंडिया की जो itself इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो भी बहुत ही बड़ा सफर करेगी बिकॉज ऑफ कटिंग ऑफ सच इम्पोर्ट्स. नाउ द ऑथर आल्सो सेज कि अच्छा चलो हमने अगर कट कर भी दिए ये सारे इम्पोर्ट्स तो फिर हमें कहीं से ऑल्टरनेटिव सप्लाई का इंतजाम करना पड़ेगा. नाउ इन शॉर्ट टर्म एंश्योरिंग सच ऑल्टरनेटिव सप्लाईज दैट टू फीजिबली इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, ये बहुत ही डिफिकल्ट स्टेप है. सो वो भी प्रॉब्लमेटिक होगा इंडिया के लिए. देन ही सेज कि चाइनीज जो इन्वेस्टमेंट्स हैं they are like Chinese, a lot of Chinese companies have heavily invested in Indian startups, जिनको हम unicorns कहते हैं. For example, companies like Alibaba have also heavily invested in Indian startups. तो अगर हमने चाइना और इंडिया के बीच की ट्रेड रिलेशंस को अफेक्ट करने की कोशिश करी एज अ कंट्री तो इंडिया के लिए भी उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा सिंस अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स रिलाई ऑन चाइनीज कंपनीज फॉर इन्वेस्टमेंट. So we should not take this decision of cutting off Chinese imports in haste. Rather, एक detailed analysis करने के बाद ही कोई effective decision लेना चाहिए. इसी से related जो हमारा second article है, rather third article है, it's called Can India Decouple Itself from Chinese Manufacturing? Again, this is a follow up from the last article. So the last article जो हमारा था वो बात करता है कि हमें immediately cut off करने चाहिए Chinese imports की नहीं. दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट अगर हम कट ऑफ करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन क्या है, मतलब क्या इंडियन इंडस्ट्री अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज इतनी बढ़ा सकती है दैट वी कैन एक्चुअली कट ऑफ इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना. सो दिस सेज विल कंपनीज बी एबल टू मूव इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन आउट ऑफ चाइना. सो ये जो आर्टिकल है दिस इज नॉट एक्चुअली एन आर्टिकल, ये इट्स अ कॉन्वर्सेशन सीरीज और उस कॉन्वर्सेशन का एक एक्सर्प्ट है. But it is important to understand all the aspects of this as a holistic, so that we can develop a holistic viewpoints on trade relations between India and China. अब ये बोलते हैं कि हम अपनी सप्लाई चेन अगर चाइना से बाहर मूव करें then India can become self-reliant and it doesn't need to rely on Chinese manufacturing anymore. लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आई? तो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था मेक इन इंडिया सो दैट Indian manufacturing could be encouraged. अभी बहुत ही अच्छी स्कीम थी, incentives दिए गए थे to manufacture in India and if it had been properly utilized ये काफी बढ़कर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छे से काम करता. बट इसमें जो कॉन्वर्जेशन है इसमें ये कहा गया है कि इस स्कीम को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया गया और इनफैक्ट लास्ट 5 years में चाइना से जो इम्पोर्ट्स हैं वो बढ़ गए. डिस्पाइट दिस स्कीम चाइना से इम्पोर्ट बढ़ गए. तो ये प्रॉब्लम रही इंडिया के लिए कि एक स्कीम जो मेक इन इंडिया थी ये प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो ही नहीं पाई. सेकेंडली द ऑथर इसमें बात की गई है कि इंडियन इंपोर्ट्स जो हैं उनमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं है. तो ये सेज कि अगर आपके इंपोर्ट्स में डाइवर्सिफिकेशन रहेगी तो आप किसी एक कंट्री से अगर आप अपना इंपोर्ट बंद भी कर दोगे देन इट विल नॉट बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू. बट इंडियन जो इंपोर्ट्स हैं वो बहुत हेवीली चाइना पे रिलाई करते हैं.
फॉर एग्जाम्पल जो क्रिटिकल मेडिकल सप्लाईज आ रही हैं, जो फ्रंटलाइन मेडिकल वर्कर्स को बहुत ही यूजफुल है, वो 80% supplies are coming from China. Now we cannot cut them off because our healthcare workers are dependent on them, and therefore we cannot cut out our imports from China क्योंकि diversification नहीं है हमारे imports में. Thirdly, this also talks about that China has value as final product assembler. Now China में जो industry काम करती है, हर टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, whether they are final products, whether they are intermediate goods, or whether they are to be used further processing में, whether वो primary goods भी हो सकते हैं. तो ये बात करते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट असेंबलर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है चाइना. तो से फॉर एग्जांपल कार मैन्युफैक्चरिंग है, तो कई कंट्रीज जो ऐसी होती हैं जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाती हैं. से फॉर एग्जांपल सम कंट्रीज स्पेशलाइज इन बिल्डिंग टायर्स, सम बिल्डिंग इन इंजन्स, बट चाइना एक असेंबलर के फॉर्म में बहुत वैल्यू प्रोड्यूस करता है. इसी वजह से, क्योंकि ये असेंबलर के फॉर्म में वैल्यू क्रिएट करता है, इसके इंपोर्ट्स कट ऑफ करना डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज फाइनल प्रोडक्ट मिलना डिफिकल्ट हो जाएगा. तो इसमें सजेशंस क्या दिए गए हैं इस आर्टिकल में ऑन हाउ टू सेपरेट फ्रॉम चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग. इट सेज दैट इंडिया में स्किल सेट का प्रॉब्लम है. वी नीड टू डेवलप स्किल सेट इन इंडियन पीपल. सो फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो आते हैं, ऐसा नहीं है चाइना के बदले इंडिया में कम इन्वेस्टमेंट आते हैं एफडीआई, लेकिन इंडिया के जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो स्पेसिफिकली आईटी सेक्टर पे फोकस्ड होते हैं. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आईटी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये पूरे वर्ल्ड में इंडिया की एक एक्नॉलेज्ड स्किल है. Everybody, even if you go to US, UK, and you ask about Indian speciality, a lot of people talk about Indian IT services. And this is where a little problem arises. That जो भी foreign direct investment इंडिया में आते हैं वो मेजरली IT सेक्टर में होते हैं. अब IT सेक्टर को कुछ हद तक इन्वेस्टमेंट चाहिए, बट नॉट टू द एक्सटेंट इट इज गिवन. रादर अगर ये इन्वेस्टमेंट किसी और सेक्टर में चले जाए तो इंडिया के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा. दूसरे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आते हैं बिकॉज दूसरे सेक्टर्स का जो स्किल है वो वाइडली एक्नॉलेज नहीं है. सो फॉर एग्जाम्पल इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्किल is not worldwide acknowledged, and therefore we need to develop this skill set in Indian people. Then the second problem is infrastructure development. We need to develop infrastructure so that manufacturing industry can come up. तो हमने पॉलिसी तो बना लेते हैं बहुत सारी, we made make in India पॉलिसी, बट उस पॉलिसी के साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होता है वो भी बनाने की जरूरत है so that Indian manufacturing can proper. Then ease of doing business. So you all must have heard there are ease of doing business indices, and थोड़े साल पहले तक India was performing badly in these indices. Then specific relief act जो है हमारा, उसमें amendment हुआ था. उसके बाद इंडिया की जो ease of doing business की रैंक है वो बढ़ गई. तो ये रैंकिंग तो इंडिया की बढ़ी हुई है, लेकिन इसमें ये बात की गई है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन रैंकिंग वी शुड फोकस ऑन द ग्राउंड रियलिटी ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. तो वी ऑल नो कि इंडिया में कितना रेड टेपिज्म है. इफ वी गो टू वन गवर्नमेंट ऑफिस वी हैव टू मूव फ्रॉम ऑफिस टू गेट इवन अ स्मॉल टास्क डन. तो ये रेड टेपिज्म को दूर करने की जरूरत है सो दैट बिजनेस करना आसान हो जाए एंड इन इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलप हो. Then we need to remove legislative bottlenecks. A lot of legislations, a lot of bills are put forward in the parliament, लेकिन वो pass नहीं हो पाते हैं because one or the other reasons. And some of those bills are very beneficial for the manufacturing industry. So there's a need to remove legislative bottlenecks so that ये जो bills हैं ये law बन के pass हो सके and they can work for the benefit of industry. Then we need to harness dominant domestic market. So India में माना जाए तो चलो मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, but there are certain areas जो बहुत ही स्ट्रांग है. For example, agriculture sector में इंडिया में we say that 70% agriculture sector है. So we need to strengthen our agriculture sector. And अगर हम domestic market जो domestic industries already present है उनको strengthen करेंगे, eventually we will move on to diversify our network, and eventually जो imports पे reliance है वो भी reduce हो जाएगी and we can be purely self reliant.
So these were the suggestions, and we will see how eventually government brings out solutions so that हम ये जो problem है इससे effectively deal कर पाए. So आज के लिए इतना ही. The quiz question for today is: which of the following country is not a permanent member of UNSC, United Nations Security Council? First, United Nations, China, Germany, or Russia. Take your time and answer. Thank you.